Hello everyone. ଆଜି ଆମେ general principle and process of isolation of metals ମାନେ metallurgy ବାବଦରେ discussion କରିବା। ତ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ metal ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କୋଉ କୋଉ ରୂପରେ ଥାଇପାରେ ତାକୁ discussion କରିବା। The first one is free or native state। ତାର ଅର୍ଥ metal ଯଦି କମ reactive ହେଇଥିବ very less reactive ହେଇଥିବ ତ ସିଏ ଆଉ କାହା ସହିତ ମିଶିକି ରହିବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ନେଟିଭ ବା ଫ୍ରି ଷ୍ଟେଟ୍। ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ ଏଇଭଳି ରୂପରେ ପ୍ରକୃତି ପୃଷ୍ଠରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫ୍ରି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଥାନ୍ତି। ତ ଆଉ କିଛି ମେଟାଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମେଟାଲ ଯେଉଁମାନେ କି କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସହିତ କମ୍ବାଇନ୍ କରିକି ଥାନ୍ତି। ତ ସେସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ କାହିଁ କମ୍ବାଇନ୍ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଭେରି ରିଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି reactiveness of a metal is high then it will like to combine with other elements। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ମେଟାଲର କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଆମେ ମିନେରାଲ୍ସ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ କମ୍ବାଇନ୍ କରିବ ବୋଲି କେଉଁ ଭଳିଆ କାହା ସହିତ କମ୍ବାଇନ୍ କରିପାରେ? ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ କମ୍ବାଇନ୍ ଯଦି କଲା ତ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେବ। ଯଦି ମଏଶ୍ଚର ସହିତ କମ୍ବାଇନ୍ କଲା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ହେବ। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ କମ୍ବାଇନ୍ କଲା ତ କାର୍ବୋନେଟ୍ ହେବ। ଏଇଭଳି ମେଟାଲ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ କମ୍ବିନେସନରେ ଥାଏ। ସଲଫେଟ୍ ରୂପରେ, ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ରୂପରେ, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ରୂପରେ, ଅକ୍ସାଇଡ୍ ରୂପରେ। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଫର୍ମରେ ଗୋଟେ ମେଟାଲ ମିନେରାଲ ଆକାରରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥାଏ। ତ ଓର୍ କାହାକୁ କହିବା? ଗୋଟିଏ ମେଟାଲ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସହିତ ମିଶିକି ରହିପାରେ। ତ ସେମ୍ ମେଟାଲର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମିନେରାଲ୍ସ ଅଲଗା ଅଲଗା ମିନେରାଲ୍ସ ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ମିନେରାଲ୍ସ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ମିନେରାଲରୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସହଜରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମେଟାଲକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ପିଓର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ସେଇ ମିନେରାଲ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ହେବ ସେଇ ମେଟାଲ ପାଇଁ ଓର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାହେଲେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ରହିଲା, କ୍ରାୟୋଲାଇଟ୍ ରହିଲା, ଡାୟାସ୍ପୋର ରହିଲା, ଇଏ ସବୁ ଆଲୁମିନିୟମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିନେରାଲ୍ସ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ହେଉଛି ସେଇ ମିନେରାଲ ଯାହା ଭିତରୁ ଆଲୁମିନିୟମକୁ ପ୍ରଫିଟେବଲି ଅର୍ ଇକୋନୋମିକାଲି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିହେଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓର୍ ଅଫ୍ ଆଲୁମିନିୟମ। ତ ଦେଖ ଆମେ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିବା ଯେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ ଅଫ୍ ମେଟାଲ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଇଟ୍ସ ଓର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯାନି ଅନେକ ଷ୍ଟେପ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହୁଏ। ତ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିକି ଯେତେବେଳେ କ୍ରସିଂ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ପାଖରୁ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ମେଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସାତଟା ଆଠଟା ଷ୍ଟେପ୍ କି ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା ସାତଟା ଯାହା ବି ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି।
तो आमे जानिछंती गोटे जिनिष गोटे रिएक्शन करबा ताले गोटे एलिमेंट को नहीं कि कहबा तू जा ताको रिड्यूस कर ए जो रिडक्शन हबा पई हेले प्रोसेस टा गोटे स्पॉन्टेनियस हवा दरकार आ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पई स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव हवा दरकार तेणु आमर गोटे प्रोसेस हबो कि नाही फिजिबल कि नाही अकर करिवो कि नाही घटिवो कि नाही ताले डेल जी वैल्यू नेगेटिव आसिया दरकार एंड फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमको जଣା अछि डेल जी जीरो इज इक्वल टू माइनस एनएफ ई जीरो सेल राइट तो बाबा तो ताहले एठी ई जीरो जो आसीगला जदि ई जीरो भैल्यूटा बहुत गुड़े नेगेटिव हेइथिबो ताले कोन हबो आमे कहूछु माइनस एठी अछि तापरे कहूछु एनएफ ई जीरो सेल दैट मीन्स जदि ई जीरो टा नेगेटिव हेगला ई जीरो नेगेटिव आमे कहूछु माइनस एनएफ ई जीरो सेल ताले माइनस माइनस पॉजिटिव हे एवं डेल जी जीरो भैल्यू पॉजिटिव हो गले आमर आउ प्रोसेसटा स्पॉन्टेनियस हो पारिबनी फिजिबल हबनी तार अर्थ आमे आउ रिडक्शन पर्टिकुलाली जहाँ इच्छा करथले जदि से रिएक्शन लो डेल जी जीरो भैल्यू पॉजिटिव आसला ताले से रिएक्शन घटिबो नाही जेमति कि फॉर एग्जांपल आमे नै परिया Na प्लस Na ता माने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज माइनस 2.17 वोल्ट दैट इज टू लेस देन बहुत सान सेटा माइनस 1.5 वोल्ट ठारू तो ताले ए प्रकार एलिमेंट को आमे जदि इच्छा करिया धरा जाओ आम पाखरे सोडियम ऑक्साइड अछि आमे ताको कार्बन दे दवा ताले सोडियम ऑक्साइड रु ऑक्सीजन टा बाहरी आसीबो कार्बन सहित मिसिकी कार्बन मोनोक्साइड हेकी पळेबो सोडियम टा फ्री हे जिवो ए कथा आमे एक्सपेक्ट करिया नाही बहुत रिएक्टिव जेहेतु सोडियम टा तेणु ए प्रकार एलिमेंट को बा ए प्रकार ऑक्साइड को आमे कार्बन दे की रिडक्शन करि परिबा नाही सेथिपाई सोडियम को फ्री स्टेट रे पाइया को हेले सोडियम रो एक्सट्रैक्शन करिया को हेले इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस बा इलेक्ट्रोलिसिस रो आमे हेल्प नै थाउ तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी अनुसार गोटे मेटाल ऑक्साइड जो थे कि मेटाल रो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टा बहुत कम माने बहुत नेगेटिव से भलिया मेटाल ऑक्साइड को इजीली रिड्यूस करी हेउ नाही किंतु खाली एई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लक्ष्य करी आमे कहि परिवानी को एक्जाक्टली डिटरमिन करि परिवानी को मेटाल ऑक्साइड को आमे रिड्यूस करि परिवा कोटा रिड्यूस करि परिवा नाही सेति पाई आमे जिबा एलिंगाम डायग्राम थर्मोडायनामिक्स अप्लाई हेछि सेठी फ्री एनर्जी रो एप्लीकेशंस हेछि चलो देखिया ताले देखो एई जो सब मेटाल ऑक्साइड रो फॉर्मेशन एवं गोटे मेटाल ऑक्साइड रो फॉर्मेशन हेला बेले को टेम्परेचर रो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज केते जेतेबेले आमे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज वर्सेस टेम्परेचर करिकी मेटाल ऑक्साइड रो फॉर्मेशन पाई गोटे ग्राफ कर दियंती दैट इज कॉल्ड एलिंगाम डायग्राम ताले एलिंगाम डायग्राम टा कोन गोटे ग्राफ टा सुदु सेतरे कोन करा हिचे ना गोटे मेटाल ऑक्साइड भिन्न भिन्न टेम्परेचर रे फॉर्म हेले केते स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होउची दैट हैज बीन प्लॉटेड आउ कोन पाई आमे एटा बेसिकली यूज करती ना बेसिकली एटा यूज हुए गोटे मेटाल ऑक्साइड टाकू आमे अन्य गोटे एलिमेंट को यूज करी कि पर्टिकुलरली आमे ताको रिड्यूस करी परिवा कि नाही दैट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम दिस ग्राफ सो दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू द एलिंगाम डायग्राम देखो एलिंगाम डायग्राम रे कोन करा हिचे एपटे देखो लेफ्ट रे मु कर्सर नेली ऊपर को जो ऑर्डिनेट अछि से ऑर्डिनेट रे आमे नेइचंती स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज वर्सेस ऑफ सीसा रे नियाइछि टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड
भिन्न भिन्न डिग्री सेंटीग्रेड रे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड देख सब लिखाई Ca प्लस O2 CaO Mg प्लस O2 MgO ता माने कोन फॉर्म होउची किए मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हैला बेले कोन चेंज होउची ना टेंपरेचर अनुसार फ्री एनर्जी रो कोन परिवर्तन होउची सेटा गोटे मेटल ऑक्साइड पई डिटरमिन करा जाई कि गोटे ग्राफ कराई बुझी पारछो एठी जो लिखाई मेल्टिंग पॉइंट ता माने कोन मेटल पई M मेटल ऑक्साइड रो मेल्टिंग पॉइंट पई M बॉक्स से भली बॉइलिंग पॉइंट जदि प्योर मेटल है तो तार बॉइलिंग पॉइंट पई B जदि से मेटल ऑक्साइड रो बॉइलिंग पॉइंट कथा को आइछि तो ताले B ऊपर बॉक्स ताले B ऊपर बॉक्स जोंठी लिखाई थिबो ताले सेटा तुमरो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेटल ऑक्साइड बोली तुमे बुझियो और एटी जो ऊपर एटी देख लिखाई मु जोटा आइली एटी कर्सर बुलाऊँ एठी लक्ष्य कर मेटाल गोटे लिखाई मेटाल माने खाली एम लिखाई गोटे जगह एम बॉक्स लिखे ताले एम टा होची कार एटा कहा कोन कर्व कपर पई कर्व ताले कपर रो मेल्टिंग पॉइंट होची एटा ता माने केते पाखापाखि 1200 डिग्री सेंटीग्रेड देखो एई पॉइंटटा जो टेम्परेचर को बुझो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट कहार कपर ऑक्साइड रो मेल्टिंग पॉइंट केते ना टिके अधिका ता माने 1200 ने धर 1400 कि 1300 1300 एटा काना एटा 1400 तेणु तो 1300 जना पड़ुची जेतिकी हेबो पाखापाखि से कपर ऑक्साइड तो ताले बाबा एबे आमे ग्राफ रो कैरेक्टरिस्टिक्स बा आमे ग्राफ रो कोन कोन ऑब्जर्व कले ताकू जानिबा प्रथम कथा हला आमे देखिले सेठी जेते टेम्परेचर आमे बढ़ौचंती डेल जी जीरो वैल्यू सेते बढ़ी बढ़ी जाउची स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज बढ़ी बढ़ी जाउची सेकंड कथा सडन इंक्रीज इन द स्लोप सीधा जाईची हठात उठी छि ग्राफटा सेटा होची सडन इंक्रीज इन द ग्राफ काई गेईची ना सेही जगह रे ही पर्टिकुलरली आइदर सॉलिड टा लिक्विड हे होतबो बा लिक्विड टा सॉलिड हे होतबो एंट्रोपी रो परिवर्तन हे होची तेणु डेल जी जीरो वैल्यू रो भी परिवर्तन हे होची बाबा तापरे कोन आसिला तापरे आसला फॉर लेस रिएक्टिव मेटल लाइक सिल्वर एंड मर्क्यूरी तुमे लक्ष्य कर पूरा ऊपर आडू सिल्वर रो गोटे कर्व अछि मर्क्यूरी रो कर्व अछि एमाने कोन होउछन टिके समय परे अल्प किछि टेम्परेचर परे जेहेतु तांकर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज गुडा को भी बहुत लो टेम्परेचर रे भी बेसी नेगेटिव नुहे काना तांकर ऑक्साइड गुडा सेते स्टेबल नहती आमे परवर्ती पॉइंट रे सेटा देखिबा तो ताले सिल्वर ऑक्साइड रो फॉर्मेशन पई जो फ्री एनर्जी कर्व टा अछि सी मूलर ही बहुत कम नेगेटिव थिला एवं टेम्परेचर बढ़ेले स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज बढ़े आय बढ़ी बढ़ी जाई जीरो जो लेवल टाको क्रॉस करी होउचंती आ से कथा लिखाई सेकंड पॉइंट रे सॉरी थर्ड पॉइंट रे अच्छा डेल जी जीरो जदि पॉजिटिव हैला आतल से ऑक्साइड फॉर्म हो ना से जेते पर्यंत नेगेटिव थियो डेल जी जीरो मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन हवा पई सेते पर्यंत फॉर्म होतो जोटी डेल जी जीरो पारे गला जीरो करकू कहा पे डेल जी जीरो ना मेटल ऑक्साइड रो डेल जी जीरो भेलो जेते बेले पारे गला जीरो को सेते बेले तर ताले आउ से मेटल ऑक्साइड अनस्टेबल हे गला हायर टेम्परेचर रे सेही कथा थर्ड पॉइंट रो आइछि नेक्स्ट स्मॉलर इज द डेल जी जीरो स्मॉलर माने हायर इज द नेगेटिव वैल्यू जेते नेगेटिव वैल्यू आस्तुव डेल जी जीरो वैल्यू टा गोटे मेटल ऑक्साइड पई से सेते स्टेबल ताले ई कथा रु कोन आमे कहि परिया सेते स्टेबल माने से फॉर्म होबा को चाहूची तो ताले आमे गोटे एग्जांपल नबा क्रोमियम ऑक्साइड को एल्युमिनियम द्वारा रिड्यूस करि परिया कि नाही हां रिड्यूस करि परिया तळ जो रेड रे आमे लिखचंती जो कथा ताकू डायरेक्ट बुझै दउची देखो क्रोमियम ऑक्साइड टा हमर एलिंगम डायग्राम रे तार कर्वटा ऊपर अछि एल्युमिनियम ऑक्साइड ठारू तो मु तुमको सजेस्ट करूची जे ग्राफ टाकू पाखरे गोटे कागज रे लेखिकी बा कागज रे ड्रॉ करिकी ए पॉइंट टाकू बुझंत बा बही रखिकी बुझंत क्रोमियम ऑक्साइड ऊपर अछि एल्युमिनियम ऑक्साइड रो कर्वटा तळे अछि तार अर्थ हैला जो मेटल ऑक्साइड रो कर्वटा तळे अछि सेही करेस्पोंडिंग मेटल ऑक्साइड रो मेटल कोन करि परिबो ना ता ऊपर थिबा गोटे मेटल ऑक्साइड को कोन करि परिबो रिड्यूस करि परिबो ताले पर्टिकुलरली कोन होबो ना ऊपर अछि क्रोमियम ऑक्साइड को एल्युमिनियम टा रिड्यूस करि परिबो काहे कि ना एल्युमिनियम ऑक्साइड जेहेतु तळकु ता कर्वटा अछि सीए बेसी फॉर्म होबा को चाहूची क्रोमियम ऑक्साइड थारू
जदि आम क्रोमियम ऑक्साइड को आलुमिनियम देदेवा ताले क्रोमियम ऑक्साइड रु ऑक्सीजन टाको आलुमिनियम को सारी आनिबो कहीं आलुमिनियम ही चाहे बेसी फॉर्म हवा को कहीं तार डेल जी जीरो वैल्यू नेगेटिव एज बिकॉज इट इज प्रेजेंट लोअर एट ए लोअर पोजीशन देन क्रोमियम ऑक्साइड बुझे ना नहीं ताले यस आलुमिनियम कैन रिड्यूस क्रोमियम ऑक्साइड तापर हम कौन जीवा ना द टेम्परेचर एट व्हिच कार्बन कर्व कट्स द मेटल कर्व ताले आमे जानु कार्बन कर्व सब मेटाल तो ऊपर आड़ को मुहा हिची डेल जी जीरो बढ़ी बढ़ी जाइए कार्बन पर्टिकुलाली बाबा कौन है कार्बन कर्वटा पूरा कट कट करी जाइए डाउनवर्ड स्लोप तार है तो गोटे पर्टिकुलर मेटाल ऑक्साइड कर्व को कार्बन कर्वटा जोटी कट कला एक्जाक्टली से इंटरसेक्शन पॉइंटटा ही सेटा इक्विलिब्रियम पॉइंट तामाने जो तापाई जदि आमे से जो मेटाल ऑक्साइड रो जो रिडक्शन कार्बन द्वारा हवा पाई जो रिएक्शन टा आमे लिखिबा दैट रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर जोटी इंटरसेक्शन हला सेही पॉइंट टा जेति की टेम्परेचर को बुझौछि तुमे ग्राफ देखो सेही टेम्परेचर रे ताहाले जो रिएक्शन बिटवीन मेटाल ऑक्साइड एंड कार्बन ताले कोन दउथबो मेटाल प्लस कार्बन मोनोक्साइड बुझौछि ना नाही मेटाल प्लस कार्बन मोनोक्साइड ताले सेटा इक्विलिब्रियम रे अछि ता माने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केते हो 1 फ्री एनर्जी चेंज ता केते आसीओ 0 बुझौछि ना कोन कथा तो फाइनल पार्ट रे आमे एलिंगाम डायग्राम रो गोटे एग्जांपल नहीं जावा जे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड रे जिंक ऑक्साइड को कार्बन को यूज करी आमे रिड्यूस करी पारिबा कि नाही एलिंगाम डायग्राम रू आमे डाटा नहीं कि कैलकुलेशन करिकी एई कथाटी देखैबा ठीक अछि अच्छा चलो ताले सॉल्यूशन करिवा देखो ग्राफ टा तुम आखि आगे अच्छी एपटे आम डेल जी नेले सेपटे आम टेम्परेचर नेले अच्छा एबे जो दीटा पाई जिंक ऑक्साइड पाई और कार्बन मोनोक्साइड पाई ग्राफ करिया को जाउचंती आगे ताकू लेवलिंग कले 1200 600 एटा भूल रे 1200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाइए सेटा यूनिट किलोजूल पर मोल ऑफ ऑक्सीजन से बुझीबो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड नुहे टेम्परेचर होता डिग्री सेंटीग्रेड होता भूल रही जाइए 2C + O2 गिविंग 2CO आम कही डाउनवर्ड कर्व और यहाँ है जिंक ऑक्साइड कर्व जोटा कि स्लोपटा हठात चेंज है सीधा जाऊला ऊपर को उठिला सेटा जिंक ऑक्साइड लेखा जाए तुम्हें बुझियो सेटा Zn 2Zn + O2 गिविंग 2ZnO से कर्व बर्तमान आम पुणी टेम्परेचर को 2000 डिग्री सेंटीग्रेड नेले 1000 डिग्री सेंटीग्रेड नेले लेवलिंग कर टेम्परेचर टाक ताले मझीटा कौन हो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड यही टेम्परेचर रे कहार फ्री एनर्जी चेंज केते सेटा को आमको डाटा नवा को पड़ो तेणु आम गोटे पॉइंट नहीं गले 1500 डिग्री सेंटीग्रेड रे जिंक ऑक्साइड कर्व उपरे तो सेटा हला 200 यूनिट 200 यूनिट में -200 यूनिट
ठीक अच्छे कहीं उपरटा 0 तौक अच्छी -200 -600 -1200 ये अच्छी बुझीगला এটা भूल रही जाइए देखी नब तुम्हें तो ताले ठीक अच्छे आम डाटा जहाँ पाइले एवं लिखा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड जिते जिंक आम लिखुं फॉर्म हूँ जिंक ऑक्साइडटा से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड रे आम जो लेफ्ट को एक्सट्रापोलेट करदे टाणी ने से पॉइंटा को कौटी भेटुची जाइकी फ्री एनर्जी कर्व को ना डेल जी जीरो इक्वल -200 यूनिट तुम्हें कन्फ्यूज हेनी कहीं खाली 200 लिखि दिखाई कहीं आम ग्राफटा को देख ग्राफ तुम्हें ट्रू ग्राफटा को तुम बही मुझे ग्राफटा देती से जाकि देख तुम्हें अलरेडी कर सारी से देख से 2C + O2 2CO या भी से जो आम पॉइंट ने सी आमको शो करुच्ची डेल जी जीरो इक्वल टू 600 -600 यूनिट कितु ये 600 लिखाई तुम्हें कन्फ्यूजन हेनी मुझे कहूँ बारंबार जे मुझे भूली जाइए सेटा 600 यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड बुझीबनी किलोजूल पर मोल ऑफ ऑक्सीजन बुझ तापर आस रिक्वायर्ड इक्वेशन ताने आम जो कहले जिंक को रिडक्शन करिया सॉरी जिंक ऑक्साइड को रिडक्शन करिया ताने कौन हो जिंक ऑक्साइड प्लस 2C कार्बन आम देले जदि रिडक्शन कथा कहते ताले कार्बनटा ही जिंक ऑक्साइड रु ऑक्सीजन टाक काढ़ी आनिबो एवं कार्बन मोनोक्साइड होगी बाहर जो जिंकटा फ्री हो ताले दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन आमर कौन कौ इक्वेशनटा दरकार आमर प्लान होची जदि ये इक्वेशन को आम देखे पारिबा डेल जी इज इक्वल टू हम तोर कौन नेगेटिव वैल्यू जदि आसला ताले आम जानिया रिएक्शनटा फिजिबल हम तो आमर जो रिक्वायर्ड इक्वेशन अच्छी जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिविंग जिंक एंड कार्बन मोनोक्साइड एटा किमिति आम पाइपर ना से कहूँ जदि इक्वेशन 1 को 2 रु जदि आम फेड़ीदवा ताले 2ZnO + 2C गिविंग 2Zn + 2CO मिल पार से दुटा इक्वेशन लो आम मानिपुलेट करवा ताले बाबा सेटा लिखिं आम 2CO आगे लिखिदे सबट्राक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 तेणु से आगे इक्वेशन 2टा आम लिखिदे बस 2 रु 1 को 2 रु 1 को फेड़ीदे बस 2 रु 1 को फेड़ीदे आमको कौन मिलूँ देख जो आम कहीं डेल जी जीरोटा को पॉजिटिव कहीं आम पूरा इक्वेशन माइनस कर देचन ना तो जोटा -200 थिला सेटा +200 यूनिट होगला तो ताले आमको रिजल्ट कौन मिलला जोटा आमर ताले रिक्वायर्ड इक्वेशन थिला रिक्वायर्ड इक्वेशन जहाँ आमको मिलवा को थिला सेटा मिलगला 2Zn + 2CO डेल जीटा भी देख आमको नेगेटिव मिलला है तेणु आम जानी फ्री एनर्जी जो आमको नेगेटिव मिलूँ प्रोसेसटा ताले कौन हो स्पॉन्टेनियस हो ये प्रोसेसटा की प्रकार प्रोसेस रिडक्शन प्रोसेस ताले हाँ जिंक ऑक्साइड को कार्बन माध्यम आम ताले रिडक्शन करें एज बिकॉज ऑफ नेगेटिव फ्री एनर्जी. Thank you so much. We'll see in the next class.